नमस्कार फ्रेंड्स, सुनील है एंड रिसेंटली AMD ने RX 6700 XT ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च किया है मार्केट में। एंड अगर आप अपना पुराना ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या फिर आप नए गेमिंग PC को बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं इस वक्त, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर यू गाइज। सो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सिचुएशन क्या है, किस बजट और किस रेट तक ये कार्ड या लेना सही रहेगा या किन लोगों के लिए ये ग्राफिक्स कार्ड अच्छा रहेगा, गिवन दैट इसका प्राइस कितना है, किस प्राइस पॉइंट तक इसको खरीदा जा सकता है। क्योंकि जो सिचुएशन है राइट नाउ मार्केट में, वी ऑल नो 40,000 का ग्राफिक्स कार्ड इज सेलिंग फॉर 80,000 रुपीज़, 85,000 रुपीज़। सो उस बेसिकली 40,000 के ग्राफिक्स कार्ड को 80,000 में लेने का कोई तुक नहीं बनता है। देयर इज नो सेंस इन बाइंग इट फॉर 80,000 रुपीज़। इट्स बेटर टू वेट, लेट द प्राइजेस कम डाउन एंड देन बाय। बिकॉज जो सिचुएशन है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ चिपसेट्स एंड ऑल, GPUs, डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है। एंड ऊपर से जो सप्लाई आ रही है मार्केट में, वी ऑल नो there are some people who are like buying it, hoarding it, and then selling it at a higher escalated prices. So yeah, a lot of things are going on, so be very careful right now if you are planning to build a PC or planning to upgrade some parts of your computer. So let's understand where the RX 6700 XT actually stands in graphics card world. So AMD ने जो कहा है, they are targeting 1440p max setting gaming with this RX 6700 XT card. Let's look at the spec quickly. So this has a 40 compute units, 2560 stream processors, 64 ROPs, 160 texture units. Game frequency is very impressive at 2424 megahertz. That's very impressive for a graphics card. Total compute performance is rated at 12.41 teraflops. Memory size is 12 GB GDDR6. Interface is 192-bit, so this gonna handicap this 12 GB GDDR6 memory a little bit. Total memory bandwidth is now rated at 384 GB per second, which is a lot less than compared to RX 6800. And it has an Infinity cache of 96 MB. Again, it's lower than the other 6000 series graphics cards. Board power is rated at 230 watt, so that is the maximum power which this graphics card can basically use. That's a good thing about AMD. It always rates the maximum power a graphics card can basically draw from your power supply, and it is priced at $479. So coming to India, it is roughly going to be priced around 42,000 rupees, जो AMD का SEP प्राइस होगा, सजेस्टेड रिटेल प्राइस जो होगा, वो इट विल बी अराउंड 42,000 रुपीज़। बट देन वी नो जो AIB पार्टनर्स हैं लाइक योर ASUS, MSI, Gigabyte, they are not going to sell this card for 42,000 rupees initially. This card is easily going to be priced around 55,000 rupees or even 65,000 rupees. Depends on demand and supply. So yeah, it will take some time for prices to come down and basically enter the 40s range. Now if you will compare it to its nearest elder sibling RX 6800, जो 6700 XT है, it basically falls short anywhere between 15 to 25% when we see at the spec sheet. I mean, it has a fewer compute units, fewer ROPs. Game frequency is high, so that gonna compensate for some lower specs. So overall it's like 15 to 25% slower compared to 6800. AMD is saying that the 6700 XT is around 85-90% of performance when compared to 6800 XT. Only time will tell कि कितना क्लोज है 6700 XT when compared to 6800. अब बात कर लेते हैं कि किसको खरीदना चाहिए और किस प्राइस पॉइंट तक खरीदना चाहिए, इन ऑल्टरनेटिव्स क्या है मार्केट में। तो अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड का बजट इज़ अराउंड 40 to 50K के बीच में, एंड
आप ऑलरेडी AMD का 3rd जनरेशन या फिर 5th जनरेशन CPU यूज़ कर रहे हो, देन आपके लिए एक ये स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन है, गिवन दैट कि आपका बजट अगेन ग्राफिक्स कार्ड का इज बिटवीन 40 to 50,000 रुपीज़। और अगर आप नया सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू बाय AMD प्रोसेसर, ऑफ कोर्स इंटेल लेने का भी उतना सेंसिबल डिसीजन नहीं बनता है इन 2021। So I always suggest if you're buying a gaming PC, stick to AMD 5000 series. They are really good gaming processors. And मैं बार बार क्यों AMD processors की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये नए GPUs हैं, they have a resizable bar feature जो कि CPU को अलाउ करते हैं पूरा का पूरा GPU मेमोरी यूज़ करने का एक ही बार में, विच इज़ अ गुड थिंग। बेसिकली इट कैन इम्प्रूव योर गेमिंग परफॉर्मेंस। इसीलिए मैं बार AMD बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इंटेल के CPUs के साथ AMD के ग्राफिक्स कार्ड काम नहीं करेंगे, बट देन आई विल सजेस्ट इफ़ यू हैव अ इंटेल CPU यू आर बेटर ऑफ विद NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड। देन एक और बात आती है कि क्या आपके पास ऑलरेडी 1440p गेमिंग मॉनिटर है हाई रिफ्रेश रेट, या फिर अगर आप 1080p गेमिंग मॉनिटर यूज़ कर रहे हो और यू आर प्लानिंग टू अपग्रेड टू 1440p और 4K, देन यू कैन एक्चुअली जस्टिफाई द हायर प्रीमियम प्राइजेस ऑफ दीज 6700 XT, आई मीन 6000 सीरीज AMD ग्राफिक्स कार्ड या NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड्स लाइक 3070 और 3080। आई मीन बाइंग 3070, 3080 and playing at 1080p panel is not very sensible, except if you are a pro esports player who needs 360 megahertz flawlessly, then that's a different scenario. तो अगर आपके पास हाई रिफ्रेश रेट, हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर है, then these cards you can always consider. And as I said, budget, and when we talk about budget, 3070 NVIDIA का जो कार्ड है, it's very close to 6700 XT in price as well as in performance. At least that's what AMD is claiming. It's almost similar or better than 3070 in 1440p gaming. So guys, let's say अगर दोनों कार्ड्स मार्केट में सिमिलर प्राइस के हैं, 6700 XT and 3070, both are अगर फॉर द सिमिलर प्राइस लेट्स से 50,000 रुपीज़ अवेलेबल है, अगर दोनों कार्ड 50,000 रुपये का अवेलेबल है, देन आई विल सजेस्ट बाय NVIDIA 3070 बिकॉज इट हैज़ अ बेट DLSS 2 which is very useful when you want to use ray tracing features of the new games. बट अगर लेट्स से डिफरेंस जो है वो 5 से 10,000 रुपये का है, लेट्स से अगर 3070 50,000 रुपीज़ का है एंड 6700 XT 45,000 रुपीज़ का है, इंटेल का CPU यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे नो ब्रेनर बाय अ 3070। AMD CPU यूज़ कर रहे हैं 3000 सीरीज़ या फिर 5000 सीरीज़, 45,000 रुपीज़ का ग्राफिक्स कार्ड है, 6800 XT, बाय द 6800 और 6700 XT। 42,000 रुपीज़ का AMD ग्राफिक्स कार्ड है, सोचिए ही मत। अगर आप AMD प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, इवन नहीं भी कर रहे हैं, तो भी 6700 XT इज़ अ गुड ऑप्शन कंपेयर टू 3070। अगर जो प्राइस डिफरेंस है वो 8 से 10,000 रुपये अगर आ जाए, तो 6700 XT इज़ गोइंग टू बी अ मोर सेंसिबल परचेज। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एंड एक बात और ध्यान में रखिएगा इसकी, AMD जो है अपने 6000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड का जो परफॉर्मेंस है, दे आर रेगुलरली सेंडिंग द अपडेट्स, जिसकी वजह से कि जो परफॉर्मेंस है दे उनके 6000 सीरीज ग्राफिक्स कार्ड का, इट इज इंक्रीजिंग रेगुलरली। एवरी मंथ दे सेंड सम अपडेट्स विच बेसिकली फाइन ट्यून सम थिंग्स, एंड जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। सो इन दैट वे AMD इज currently improving the performance figures of their 6000 series graphics card जो already launch हो चुके हैं मार्केट में। and rest it's all depend upon your location कि वहाँ पे कितना सप्लाई है, what are the rates। I mean Amazon और Flipkart पे तो it's foolish right now to buy these things। जो specific computer websites हैं इंडिया में like Prime AMG, AMD Computers and all, it's better, वहाँ पे better deals मिल रही हैं। कोई भी ग्राफिक्स कार्ड इस वक्त आप ले लीजिए मार्केट में, वहाँ पे better deals मिल रही हैं, बट वहाँ पे भी स्टॉक्स का काफ़ी इशू है। सो कीप लुकिंग एट द स्टॉक्स एंड रिमेंबर गाइज, डोंट पे वेरी hefty premiums because at later dates you might regret paying a big premium for these cards. So I'll rather say कि अगर आप वेट कर सकते हैं, so please wait, let the prices cool down and then buy. So that's it from this video guys. अगर आपके माइंड में कुछ और है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ और जानना चाहते हैं, go ahead, write them in comment section. I'll try to reply them as soon as possible.
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन पे क्लिक करके। लेट्स गेट कनेक्टेड टू ईच अदर। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, ciao.